الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم اور قابل احترام حضرات علماء کرام اور نوجوان بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ہم لوگوں کی مشاورتی گویا یہ مجلس ہے، تو ادھر سامنے تھوڑا سا قریب میں آ جائیں تو بات تو تقریر کی نہیں ہوگی لیکن بات کچھ گفتگو کے انداز میں ہوگی. اور تقریر تو بھائی آپ حضرات بڑی دیر سے سن رہے ہیں اور ماشاء اللہ جو بھی باتیں اس مجلس میں پیش کی گئی ہیں اور جتنے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی رپورٹ پیش کی ہے دینی تعلیم کی لائن سے یا اصلاح معاشرہ کی لائن سے، جو بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. بلا شبہ ہم سبھی لوگ ایک تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں. اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند ہے. جمعیت علماء ہند یہ ہمارے اکابر اور اہل اللہ کی جماعت ہے. ہمارے ان اکابر کی جماعت ہے جن کے تقویٰ اور طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر خاص طور سے اس ملک میں جب بھی کوئی افتاد پیش آئی ہے، جب بھی کوئی آفت سامنے آئی ہے، کوئی بڑی سی بڑی مصیبت آئی ہے، چاہے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی ہو اور چاہے ارتداد کی کوئی لہر چلی ہو یا کوئی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی ہو، جیسا بھی جب بھی مسئلہ پیش آیا ہے الحمدللہ ہمارے اکابر کی اسی جماعت نے یہ سد سکندر بن کر سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے. اور اس جماعت کی بشارت گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دی ہے کہ قیامت تک ایک جماعت باقی رہے گی، لوگ اس کو برباد کرنے پر آئیں گے، نقصان کرنے پر کوشش بے انتہا کریں گے، لیکن اللہ پاک کی نصرت اس جماعت کے ساتھ ہوگی اور یہ جماعت ہمیشہ حق کا بول بالا دے گی اور اسلام کا دفاع کا کام کرے گی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ ابن ماجہ شریف کی باب الاتباع کی روایت ہے. الحمدللہ اس روایت کی روشنی میں آپ دیکھیں اپنے اکابر کو، جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی فتنہ اٹھا، کوئی بھی زیادتی پیش آئی ہے، ہماری اسی جماعت نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا ہے. چاہے انگریزوں کی آزادی کا مسئلہ ہو یا اس ملک میں یہ آزادی کے بعد جب کوئی مسئلہ پیش آیا ہماری جماعت آمنے سامنے. تو ہم اس جماعت سے تعلق کرتے ہیں جن کا تقویٰ و طہارت کی بے مثال. رات میں وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے اور اللہ سے سرگوشیاں کرتے تھے، اور دن میں ان کے ہاتھوں میں درکفِ جامع شریعت، درکفِ سلطان عشق، وہ کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. اسی لیے ہمارے حضرت استاد نے شعر کہا ہے
کوثر یہاں تک جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کا فقیری کے آگے شاہوں کے محل رک جاتے ہیں۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اس جماعت کے سرخیر تھے، ہمارے حضرت استاد نے فرمایا اے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامے کی اتار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں، یعنی ہمارے اکابر ایک سے بڑھ کر ایک۔ خیر یہ تو سبھی لوگ ہمارے اس جماعت کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے، باتیں تو آپ کے سامنے بہت ساری آئی تو قابل تعریف، میں آپ کے سامنے تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بات ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جس کا وجود ہم زمین پر قائم کر سکیں، ہمیشہ بات ایسے ہی کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لچے دار باتوں کے بجائے ہم وہ باتیں کریں جو ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوں، اور بغیر کسی معلومات کے کوئی بات آدمی کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ معلومات کچھ نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک بات کو آدمی بلا لیتا ہے، تو معلومات بھی ہونی چاہیے، تب آپ اس کی گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں، ورنہ اڑی اڑائی باتوں پر کان دینا یہ عقل مندوں کی بات نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تعلیم کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تعلیم یہ سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی عبادت ہے، اس سے پڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ دین کی تعلیم دینا اس سے پڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور کوئی عبادت نہیں، اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اس مقصد کے تحت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ کو آپ کی نبوت کے اہم مقاصد کے سب سے اہم مقصد یہ تعلیم دینا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو آپ ہی میں سے ایک شخصیت کو بھیجا ہے جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا اور آپ کو سکھلائے گا، قرآن کی باتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے گا اور تعلیم دے گا، اور آپ کے دلوں کا تزکیہ بھی وہ فرمائے گا، کیونکہ جب قرآن کی تعلیم سے انسان وابستہ ہو جائے گا تو یہ قرآن کی تعلیم دینے والا اس کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے گا، اور علم و حکمت اور دانائی کی باتوں کو بھی وہ سکھائے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ سب سے اہم مقصد قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، اور ہم اپنے مکتب کے ذریعے سے یا مدرسے کے ذریعے سے یہی کار نبوت انجام دیتے ہیں۔ نبی کا جو مشن ہے ہم اس مشن کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس تعلیم کی بے انتہا اہمیت بیان فرمائی ہے، ذکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں، حدیثیں تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، میں بطور مذاکرے کی آپ سے کہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا ہوتا ہے 100 رکعت نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دین کی ایک بات کا سیکھنا، یعنی دینی علم کا ایک بات کا سیکھنا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو ہم اور آپ جس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی مکاتب سے اور مدارس سے جو جڑے ہوئے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، یہ بے انتہا اونچا کام ہے۔ ساری عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کی اہمیت ہے۔ اور بہت ساری حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے، بہت ساری حدیثوں پڑھا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جب بچہ نکلتا ہے تو جنت کے راستے میں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی علم کی رفع درجات کی بنیاد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں سنائی۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو جمعیت علماء ہند ہے وہ شروع ہی سے اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کا تعلق اور ان کے بچوں کا تعلق دین اور ایمان کے تحفظ سے اول نمبر پر ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی ایسی سرگرمی دکھائی پڑ رہی ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان پر آنچ آ رہی ہے یا ان کے بچوں کے دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہماری یہ جماعت پہلے سے زیادہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ شروع میں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا سن 1947 تب یہی کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو بمبئی میں ہماری اسی جماعت نے حضور بلال بمبئی میں بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اور اسی اجتماع کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم اسلام، دینی تعلیم کے رسائل، یہ ساری کتابیں اس اجتماع کے بعد لکھی گئی، اور وہاں یہ تجویز پاس ہوئی تھی کہ ملک کا کوئی شہر کوئی خطہ ایسا باقی نہ رہے جہاں مکاتب کو قائم نہ کیا جائے، اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو ایمان کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں زندہ رہنا گوارا کرو، ورنہ تمہاری زندگی سے موت کے گود میں چلے جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارے اکابر نے اسی وقت قسمیں کھائیں اور پورے ملک میں دورہ شروع فرمایا، اور ہر ضلع میں جا کر، ہر صوبے میں جا کر دینی مکاتب کی احیاء کی کوشش فرمائی، اور الحمدللہ اس وقت بہت سارے مکاتب ہندوستان میں خصوصاً صوبہ اتر پردیش میں وجود میں آ گئے۔ یہ دینی تعلیمی کونسل جس کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، جو ہمارے اتر پردیش میں قائم ہوئی تھی، قاضی محمد عدیل عباسی یہ اس کے بانی تھے۔ قاضی محمد عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اس بمبئی کے اجتماع میں شریک تھے، اور ہمارے اکابر کے ہی فیصلے کی بنیاد پر حضرت قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یوپی میں کفن باندھ کر بچوں کی دینی تعلیم کے لیے جدوجہد شروع فرمائی تھی۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی دلچسپی کسی چیز سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے دلچسپی تو ہوتی ہے لیکن اس سے کم ہوتی ہے، بلکہ دوسرے شعبے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن قاضی عدیل عباسی رحمۃ اللہ علیہ کو دینی مکاتب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے اس کی بے انتہا جدوجہد فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی جدوجہد کا نام دینی تعلیمی کونسل رکھا۔ یہ اسی دور کی ایجاد ہے، اور الحمدللہ ان حضرات کی کوششوں کے سفید میں ہمارے پورے اتر پردیش میں دینی تعلیمی کونسل کے بیٹر کے تحت ہزاروں مکاتب قائم ہوئے جو آج بھی چل رہے ہیں، باقاعدہ ان کا نصاب تیار ہے۔ تو یہ ہمارے جمعیت علماء ہند کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا بمبئی میں، اب اسی کے اثرات کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ دینی تعلیمی کونسل بھی وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ وہیں پر دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہوئی، اور یہ دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل کے سفید میں یہ سارے جو رسائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دور کے اکابر اہل اللہ سے لکھوائے گئے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے جو رسائل ہیں دینی تعلیم کے رسائل ہیں 12 یا جو تعلیم اسلام ہے یا اس طرح کے اور بھی رسائل لکھوائے گئے تھے، آج بھی عموماً مکاتب اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی جدوجہد تھی، آج جب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، تو ہمارے انہی اکابر نے سر جوڑ کر جو کچھ تھوڑا سا جمود تعلیم ہو گیا تھا، تھوڑی سی سستی پیدا ہو گئی تھی کام میں، تو اس سستی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مسلمہ ارادہ اٹھایا، اور ایک ایسی جماعت تشکیل ہو گئی جس کی سربراہی حضرت مولانا محمود اسد مدنی دعوت برکاتہ جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں، ان کی فکر کے نتیجے میں یہ ایک سربراہی چل رہی ہے آپ کی، اور حضرت مولانا ابوالقاسم دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں نعمانی، اللہ ان کے حیات کو لمبی فرمائے، وہ اس دینی تعلیمی بورڈ کے صدر، اور روح پھونکنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، یہ
तीन जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये तीन तो बुनियादी तौर पर मरकज की तरफ से इस दीनी तालीमी बोर्ड को चलाने वाले लोग हैं और इन्होंने असरनो तश्कील की हिंदुस्तान के हर सूबों की और हर सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी बोर्ड की यूनिट सूबाई यूनिट कायम है और हर सूबे के तहत दीनी यूनिटें भी कायम है और ये हर यूनिट अपने अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी मकासद का काम बखूबी अंजाम दे रहा है। महाराष्ट्र वगैरह में बहुत उम्दा तरीके पर काम हो रहा है। हमारे यूपी में भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी बोर्ड के तहत अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त तो यूपी में मैं आपको बताऊं कि यूपी में इस वक्त जो मदरसे कायम हो चुके हैं वो लगभग 1100 मकातिब जो दीनी तालीमी बोर्ड के तहत चल रहे हैं। 1100 मकतब, यानी ये वो मकतब है जो दीनी तालीमी बोर्ड के तहत चल रहे हैं। वहाँ दीनी तालीमात जो बोर्ड का एक निसाब है वो निसाब वहाँ पढ़ाया जाता है। और देखिए कुछ तो मकतब ऐसे होते हैं जो मुनज़्ज़म होते हैं, लेकिन बहुत से मकतब ऐसे होते हैं जो गैर मुनज़्ज़म होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चाहे मुनज़्ज़म हो या गैर मुनज़्ज़म, दोनों में काम हो रहा है। हमारा मकसद तो दीन की तालीम से बच्चों को वाकिफ़ कराना और बच्चों के दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ उस पर हमें गौर करना है। बहुत से ऐसे देहात आपको मिलेंगे, जैसे अभी हज़रत मौलाना ये बता रहे थे बसेती वाले, बहुत से आपको आपके इलाके में ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ के बच्चे, उनके गार्जियन उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये दर्द रखते हैं अपने दिल में कि मुसलमानों के बच्चे हैं, कम से कम इनको कुरान आ जाए, इल्म दीन थोड़ा बहुत आ जाए, इतना जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, हम उनसे ज़्यादा तशकील करते हैं, लेकिन वो खर्च बर्दाश्त न करने की बुनियाद पर वो हाथ अपना छाड़ देते। तो ऐसी सूरत में हमारी दीनी तालीमी बोर्ड ये कहती है कि आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए और मस्जिद से जोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हाल हो या कोई कमरा हो, हर गांव में तकरीबन मस्जिद तो होती है, मस्जिद से जोड़ने की कोशिश कीजिए और उनके गार्जियन को समझाने की कोशिश कीजिए और अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करने की उनको तरकीबें बताइए। तरकीबें बताने से तरकीबें समझ में आ भी जाती हैं और जो लोग तरकीब बताकर ये काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में कामयाब भी हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको जिले की बात बता रहा हूँ, मौलाना रेहान साहब है। मौलाना रेहान साहब गुजरा के रहने वाले हैं, तहसील सिदौली गुजरा के रहने वाले हैं। वो 50 अब तक के करीब चला रहे हैं। उन्होंने अपनी एक तरकीब बनाई है। जब आदमी दीवाना होता है, मजबूर हो जाता है, तो उस काम के करने की तरकीब खुद बनाता है। मौलाना रेहान साहब ने तरकीब बनाई। जिस गाँव में उनको मकतब चलाना था, उन्होंने गाँव वालों से मशवरा किया। दीन की तालीम की सबसे पहली बात को अहमियत बताना चाहिए। दीन की तालीम की अहमियत बताना चाहिए। जब दीन की तालीम की अहमियत दिल में आएगी तो फिर उनको तरकीब आप बताएंगे तो उस तरकीब को अपनाने पर आमादा भी होंगे। उन्होंने जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले क्या तरकीब चलाई थी कि चुटकी आटा, ये मेटियाँ जो है ये बर्तन घर घरों में रखवा दिए गाँव गाँव में, और ये कह दिया था कि औरतें जब खाना पकाना शुरू करें तो एक चुटकी आटा उस पेटी में डाल दिया करें। हफ्ते भर को डालते रहेंगी। हफ्ते में एक दिन कोई जिम्मेदार बन जाए, उस गांव की जितनी भी मेटियां हैं बर्तन आटा रखने वाली, उसको इकट्ठा करके उसको बेच दिया जाए। बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो मकतब का खर्चा उससे चलेगा। माशाल्लाह ये सिस्टम भी कामयाब था। मैंने खुद आटा वसूल किया है, बहुत अपने गाँव में आटा वसूल किया है। ये उस वक्त का दौर था, लेकिन आज का दौर बदल गया है। आप कोई दूसरी तरकीब बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई तुम पान खाते हो, गुटखा खाते हो, चाय पीते हो, कम से कम एक चाय की कीमत 5 रुपये खाइए। दिन भर में आप 5-7 चाय पीते हो, गुटखा खा लेते हो, 50 रुपये का आपका खर्चा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए 5 रुपया एक चाय का पैसा बचा के नहीं कर सकते हो? आप इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आती है।
ضروری ہے اور دین جو ضروری ہے اس کے لیے ہم 5 چائے کے بجائے 4 چائے پی لیں گے، 1 چائے کا پیسہ ہم اپنے بینک کھاتے میں ڈال دیں، ایک ڈبہ بنا لیں اس میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ آپ کے سمجھانے کی بات ہے، آپ سمجھانے کے آئیں گے تو سمجھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آمدنی اسی گاؤں سے ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ جب یہ جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ایسے احباب بھی مل جائیں گے جو فکر رکھتے ہیں آج بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی آج کچھ لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی دین کا کام ہونا چاہیے، مقصد کا کام ہونا چاہیے، قرآن بچوں کی دل اور دماغ کو کرنا چاہیے۔ آج کچھ جو فکر مند ہے آپ کا وہ ضرور کام کریں گے، آپ میدان میں آئیں، اللہ تعالیٰ راستوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ آپ جس گاؤں کا سروے کریں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہاں میں سے منتظرہ کے لوگ ہیں، آپ اپنے پاس پڑوس کے گاؤں کا سروے کریں، اگر وہ لوگ خوشدلی کے ساتھ اپنا خود بندوبست کر سکتے ہیں، خود کفیل بنا سکتے ہیں، کفیل مکتب بنائیں، نہیں خود کفیل کر سکتے ہیں تو آپ ترکیبیں بتائیں، آپ جدوجہد کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، آپ کو جو جدوجہد کا ثواب اللہ پاک ضرور دے گا۔ کوشش کریے، کامیابی دینا تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ مکتب کی اہمیت کے تعلق سے ہم نے تھوڑی سی بات کرنی، ایک دوسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ دیکھیے مکتب کا قیام تو ہر بستی میں، چاہے چھوٹی بستی ہو یا بڑی بستی ہو، ضروری ہے، لیکن میں آپ حضرات کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنی بستی میں، اگر بڑی بستی ہے تو درجے 5 تک کا خود کفیل مکتب کہہ لیجیے چاہے اسکول کہہ لیجیے، یہ قائم کرنے کی ضرور کوشش کیجیے، اسکول قائم کرنے کے لیے ضرور کوشش کیجیے، اور کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسکول قائم کیا ہے، 1 سے 5 تک پڑھاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی اخباروں میں بھی سنا نوٹس سب کو آ رہی ہیں، جو لوگ اسکول چلاتے ہیں ان کو نوٹسیں آ رہی ہیں، اور اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسوں کو بھی نوٹسیں آ رہی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مدرسہ چلا رہے ہوں یا جو جزوی مکتب چلا رہے ہوں ان کو اس کے سلسلے میں جانکاری بھی رکھنا حد ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی افسر آ جاتا ہے ایک نوٹس کا کاغذ لے کر، اور اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے، سب پہلے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جو یہ پڑھا رہے ہیں، جو مدرسہ چلا رہے ہیں یا اسکول چلا رہے ہیں، اس کی مانتا ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر کی بات ہے آپ کہیں مانتا نہیں ہے، اگر آپ کی مانتا نہیں ہے تو آپ کہیں گے مانتا نہیں ہے، جب مانتا نہیں ہے تو وہ ایک کاغذ آپ کو دے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر مانتا کے اگر کوئی اسکول چلاتا ہے تو وہ اس ایکٹ کے تحت، اس ایکٹ کا نام ہے نشلک بال شکشا ادھیکار ادھینیم 2009، جو اس ایکٹ کا نام ہے نشلک شکشا بال ادھیکار ادھینیم سن 2009۔ یہ ایک ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسکول چلاتا ہے بغیر مانتا لیے ہوئے تو اس کو فوری طور پر 1 لاکھ کا جرمانہ ہوگا، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو روزانہ 25,000، 10,000 سے 25,000 کا جرمانہ ہوگا، اور نہیں مانتا ہے تو سیدھے جیل جانا ہوگا۔ یہ ہے اس ایک کا خلاصہ، یعنی اس ایک کا ایک مضمون ہے، اور اسی کو ٹائپ کر کے پی ایس اے کے یہاں سے، چاہے وہ کھنڈ ادھیکاری ہو یعنی علاقے کا ادھیکاری ہو، چاہے ضلع کا ادھیکاری ہو، وہ لے جا کر آپ کو پکڑا دے گا، اور آپ بات کرنا نہیں جانتے اس سے تو آپ گھبرا جائیں گے، آپ کا پیر کانپے گا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ آپ نے اسے بات کرنے کا گن سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں، جو مکتب چلانے والے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کی جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے، اور کس انداز میں آپ ان سے بات کریں گے وہ انداز بھی آپ کو مشق کر دینا ضروری ہے۔ آپ اس کو جواب دینا چاہیں، آپ فصیح اور بڑی اردو میں بولتے ہیں، بھائی دستوری ہند نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم اس دفعہ کے تحت ہم یہ قائم کر سکتے ہیں،
शिकायत कर सकते हैं। तो न तो दस्तूर ही समझता है न कुछ समझता है, तो सीधे सीधे बात करता है कि आप गैर मदरसा चला रहे हैं इसलिए आपको ये लागू होगा, और वो कार्ड बताओ नोटिस के नाम से आपको नोटिस दे देगा। ये इस वक्त बहुत सारे मदरसों को नोटिस मिली हुई थी, आपने देखा होगा अखबार में। इधर आप गोरखपुर की तरफ से बहुत सारे मदरसे बंद भी कर दिए लोगों ने, और बहुत सारे मकतब जो मानता प्राप्त नहीं थे वो भी बंद कर दिए। तो मैं इस सिलसिले में आपको एक तारीख के ताल्लुक से जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, हमको इस गवर्नमेंट ने जो दस्तूर दिया है, उनकी आज़ादी की बात हम उर्दू में इसको दस्तूर कहते हैं, हिंदी में अधिकार कहते हैं, कि हमको जो अधिकार मिला हुआ है इस दस्तूर की रोशनी में, सबसे पहला ये हमको हक, बुनियादी हक मिला है, इसका नाम है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के पैराग्राफ 1 में ये साफ साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का हर अल्पसंख्यक, मुसलमान नहीं, हर अल्पसंख्यक, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, हर अल्पसंख्यक को अधिकार है कि वो अपने भाषा, जुबान की बुनियाद पर या अपने धर्म यानी मजहब की बुनियाद पर शिक्षण संस्थान यानी तालीमी इदारे कायम कर सकता है, और उसकी रेख देख की जिम्मेदारी भी वो निभा सकता है। उसमें कोई हुकूमत या कोई हुकूमत का आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये एक है, इस एक को आप अपने पास जरूर रखिए, इस एक को आप अपने पास जरूर रखिए। दिखाने के लिए हम मदरसा चलाते हैं, और हमको मदरसा चलाने का अधिकार मिला हुआ है, ये संविधान देता है, दस्तूर हिंद ये इस दफा भी ये लिखा हुआ है, ये आप देखिए। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा एक है जो खुलकर मदरसों के नाम से है, उस एक को भी आप जरूर रखिए। यानी मैं ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका मानता नहीं है, जिनके पास मान्यता नहीं है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उस एक का नाम जो अभी मैंने आपसे बताया, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे कानून हैं उसके लिए जो स्कूल चलाता है, जो स्कूल के माना है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, ज्योग्राफिया है, साइंस वगैरह जो स्कूल का सिलेबस होता है वो जो चलाता है उसको स्कूल कहते हैं। इस स्कूल के लिए वो कायदा बना हुआ है कि बगैर मंजूरशुदा गवर्नमेंट के बगैर मान्यता दिए हुए 1 लाख का जुर्माना आयद होगा, वरना 10,000 से 25,000 तक डेली जुर्माना होगा, नहीं मानता, वरना तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये स्कूल के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ठीक उसी के बाद पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस नियम से, इस कानून से मदरसे, पाठशालाएं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, मदरसे, पाठशालाएं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। आप इस एक की कापी भी रखिए, ये 2 कापी आपके पास हो जाएंगी, और आप उसकी तैयारी भी कीजिए। अभी तो मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि ठंडा हो गया है, ये मत समझिए, ये उबाल पानी में से अक्सर बेशतर उबलता रहेगा, इसी वजह से वो ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर वो उबलना शुरू हो जाता है। ये 2 एक आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, इसमें भी हमारे हजरात और इकराम एहतियात नहीं बरतते हैं। जब कोई अधिकारी आता है पूछने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको अपना मदरसा हो या मकतब हो, उसका रख रखाव आपको रखना लाजमी है। यानी आने वाला आदमी देखे कि हाँ भाई कोई आप ये तालीमी इदारा चला रहे हैं, रख रखाव मतलब साफ सफाई होना चाहिए। कम से कम एक ऑफिस ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर कोई बाहर का आदमी आए तो आप उसमें बैठ कर उससे बातचीत तो कर सकें। और पढ़ाने वाला आदमी भी ऐसा होना चाहिए, जो भी पढ़ा रहा हो ना, वो साफ सुथरा कपड़े पहनकर और ड्रेस वगैरह जो भी वो पहनता हो वो रहे, ताकि अगर इत्तेफाक से कोई अधिकारी आ जाए तो वो उसके सामने आकर अपनी आप
बैठा सके। इज्जत और इकराम से बैठाइए और उससे पूछिए कैसे आना हुआ आपका। आप इज्जत के साथ, तकरीम के साथ उसको बैठाएंगे तो आपके इस इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर वो मुतासिर जरूर होगा। अब अगर वो आया हुआ है, बीएसए के यहाँ से आया हुआ है, बीएसए शिक्षा अधिकारी के यहाँ से आया है या नोटिस लेकर आया है, तो आपकी अगर पहले से तैयारी होगी तो आप कहिए। जब वो पूछता है आप क्या पढ़ाते हैं, तो हमारे मदरसे वाले क्या, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, हिसाब, यानी पूरा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब बताएंगे। और बताना अपने लिए फर्क समझिए कि ये सुनने वाला समझ जाए कि हमारे यहाँ सब कुछ पढ़ाई होती है, कुरान की पढ़ाई होती है और दीनियात की पढ़ाई होती है, एक स्कूल की तारीफ होती है, पर जहाँ आप ये बताया वहीं पर आप अटके। अगर आपको ये एहसास हो गया कि कोई आदमी अधिकारी आया हुआ है, तो आप अपने मदरसे का तारुफ से कितना कराइए कि हम यहाँ धार्मिक शिक्षा देते हैं, या उसकी भाषा में बोलिए। मजहबी तालीम भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए कहिए मैं यहाँ धार्मिक शिक्षा देता हूँ। और इसके अलावा हम यहाँ कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि एक जो आपकी मदद करेगा, ये जो दो एक मैंने आपको बताया है कि जो आपको एक की मदद करेगा वो धार्मिक शिक्षा की बात ही पर मदद करेगा। अगर आप स्कूल की बात कह देंगे तो आप वहीं पर फंस जाएंगे और आप पर वो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का कानून आप पर लागू हो जाएगा। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ प्रताप में 2 नोटिस आई, 2 मदरसों को नोटिस आई, एक मकतब को नोटिस आई जो 5 तक पढ़ा और एक मदरसे को नोटिस आई। अब मौलाना साहब क्या है, कोई जानकारी लिखी नहीं, ना एक की जानकारी, ना हम उससे कैसे बात करें। अब उस अधिकारी ने कहा बंद करो वरना आपका 1 लाख रुपया रोक लिया जाएगा। मौलाना साहब का ठीक है बंद कर देते हैं। तो मौलाना साहब को मदरसा चलाते तो बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन 5 दर्जा तक, 1 से 5 तक वो पढ़ाते थे, लेकिन मानता नहीं थी। जैसे दीनी तालीम काउंसिल, अभी दीनी तालीम काउंसिल के बारे में अभी आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, तो दीनी तालीम काउंसिल करता। देखो दीनी तालीमी काउंसिल आप ये समझिए वो कुछ नहीं, यानी आप ये मत समझिए कि उसकी कहीं मानता है, ये मुख्तसर मैं बता रहा हूँ। दीनी तालीमी काउंसिल का मतलब उन्होंने हमारे बुजुर्गों ने किया था, और पहले के जो नेता लोग थे, पहले के जो जिम्मेदार होते थे गवर्नमेंट के, वो ख्याल करते थे, एहतराम करते थे बुजुर्गों का। लेकिन अब एहतराम की बात कोई नहीं रह गई है। जो अब दीनी तालीमी काउंसिल जहाँ भी मकतब है 1 से 5 तक, ये समझिए को गैर मान्यता प्राप्त है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब 5 के बाद 6ठी क्लास में उस बुनियाद पर आप बच्चे को दाखिल कर सकते हैं। अभी तो सब कोर्ट चलने लगा है, जब कोर्ट नंबर मिलेगा जब 6ठे क्लास में दाखिला होगा, तो खैर ये अलग सी बात हो गई। तो वहाँ आगे नोटिस उन्होंने कहा हम कर दें। हम लोगों को जब मालूम हुआ, हम खुद भी पहुँचे और लोग पहुँचे, बातचीत की मौलाना साहब से, कहा ऐसा है। तो मैं कहा कि आपको नोटिस दिया, कहा नोटिस नहीं दिया, ज़बानी अपनी बात करो। यानी इतने डर जाते हैं, इतने सहज जाते हैं, खाली ज़बानी बात किया उसने। अरे कहना चाहिए था कि अगर आप अधिकारी हैं तो कम से कम आप हमको नोटिस दीजिए, हम आपको उस नोटिस का जवाब देंगे। इतना डर हावी हो जाता है कि बगैर नोटिस दिए उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, दूसरे वक्त में पहुँचे, उनको बाकायदा नोटिस दिया। जब नोटिस दिया तो हम लोगों ने बैठ कर आपस में मशवरा किया। इस नोटिस में वही बात की जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया, तो उसकी तैयारी की, उसका बाकायदा जवाब लिखा, जाकर सबसे पहले बीएसए शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। वो मिला, वो फायदे से मिला, और मिलने के बाद उसकी सारी बात बताई गई, उसको एक दिखाया गया और बात अच्छे अंदाज में की गई। और आपसे एक बात और भी अर्ज करता हूँ, आप बात करना खुद सीखो। मैं आप सारे नाम कहता हूँ, आप बात करना अधिकारियों से खुद सीखो। आप वकील का सहारा लेते हैं, जहाँ जरूरत तो बेशक वकील का सहारा लीजिए, लेकिन अपने मदरसों की बात करने के लिए आपको उनसे ज़्यादा जानकारी है। आप बात करना सीखो, वरना क्या होता है, बात कुछ होती है, वकील साहब आपकी तर्जुमानी कुछ कर देते हैं, वकील साहब आपकी तर्जुमानी कुछ कर देते हैं जिसको आप चाह नहीं रहे। तो ये आप बात करना खुद सीखिए। तो पीछे से बात की गई, उनको पूरा एक्ट दिखाया गया, उनको अधिकार है। देखिए दस्तूर हिंद संविधान उनको अधिकार देता है, आप देखिए। तो देखने के बाद बहुत देर तक गौर
अब सेंट्रल अधिकारी को फोन मिला है, क्योंकि हर जिले में मदरसों से ताल्लुक रखने वाला अफसर जो है वो सेंट्रल अधिकारी है, उससे बात कराया, तो बातचीत किया, तो वो क्या कह रहा था ये तो हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन ये जो कह रहा है वो हम लोग सुन रहे थे। तो बात फिर ऐसा है तो मानना ही पड़ेगा, यानी ये बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहा था। तो बाद में आखिर में उसने जवाब दिया, जाइए मौलाना साहब हम इस पर गौर करेंगे, अभी आइंदा किसी मदरसे को किसी मकतब को नोटिस नहीं जाएगी, ये उसने पीछे ने कहा, जो बड़ा अधिकारी होता है जिले का। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुनासिब समझा कि जो जिले का सबसे बड़ा जिम्मेदार है डीएम, उससे मुलाकात है, तो एक डीएम को प्रोग्राम बनाया, हम ही लोग वकील साहबान को रख लिया था, लेकिन बात हम ही लोग करते थे। वकील साहबान को हम लोगों ने कहा था बेशक आप रहिए हमारे पीछे, हमसे कोई गलती हो तो आप बनाइएगा उसको, लेकिन बात करते हमको दीजिए ताकि उसको एहसास हो कि मौलवी मुल्ला मौलाना भी बात कर सकता है डीएम से। हम लोगों को टाइम दिया, उसने बाकायदा टाइम दिया और अपने चैम्बर में बुलाया। हम 5-7 लोग थे, अभी कुर्सी में बैठे हमारे वकील साहब साइड में थे, वकीलों में भी 3-4 वकील थे। अब उसने बात शुरू किया, हमने ही उनको अपना जो तैयार किया था ज्ञापन, उनको मैंने ज्ञापन दिया और ठेठ हिंदी में ज्ञापन तैयार किया। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके साथ साथ दोनों एक लगाया, गौर करने के बाद फिर उसने यही कहा कि अच्छा तो आप लोग पैसा भी चलाते हैं? हमने कहा जी हाँ, हमारे यहाँ तो सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और धार्मिक शिक्षा देने में चूँकि हम अपने धर्म की नस्ल इशाअत तबलीग जो करते हैं वो अलग अलग जुबानों में भी करते हैं, हिंदी जुबान में भी करते हैं, इंग्लिश जुबान में भी करते हैं, इसलिए जुबान और लैंग्वेज के लिहाज से हम हिंदी भी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, ताकि हम अपने धर्म को, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे जो उर्दू नहीं जानते हैं उनको हमें हिंदी में समझाना होता है, अंग्रेजी में समझाना होता है, तो हम ऐसा भी करते हैं। गुड, सही कहा आपने। उसने भी फिर मिलाया डीएम साहब ने, बातचीत हुई, उसके बाद कहा मौलाना चाहिए आज के बाद आपके जिले, आज के बाद कोई नोटिस कहीं नहीं जाएगी, आज के बाद कोई नोटिस नहीं जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नोटिस नहीं गई। और फिर बहुत सारे लोगों को मालूमात हुई, तो हमने जो ज्ञापन तैयार किया था वो बहुत सारे लोगों ने हमसे मांगा जहाँ जहाँ नोटिसें आई हुई थी, जैसे सिद्धार्थ नगर वगैरह के इलाके में, अलीगढ़ वगैरह में आई थी, हमने भेजा। अब आप देखिए, अब उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तो मामला बस्ते में गया है, ठंडा है, लेकिन ये ठंडे ही है, कोई जरूरी नहीं कि ठंडा ही है। मैं अपने इस वाक़े से आपको ये बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू का फन सीखिए, अधिकारियों से कैसे बात की जाए, वकीलों का जरूर सहारा लीजिए, कानूनी बात मान। ये मदरसे का जो एक है, ये जो बताया मैंने, ये अच्छे अच्छे वकीलों को नहीं मालूम है, अच्छे अच्छे वकीलों को नहीं मालूम है। 20 पार्टी के जो सर मोहतरम है अयूब अंसारी, उनके साथ 5-6 वकील थे, वो आए प्रतापगढ़, इत्तेफाक से मैं भी था वहाँ पर, वो कहने लगे मदरसों पर कमेंट कर रहे थे, अब मदरसे बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मदरसे तो बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार चाहती है मदरसे न रहें। तो मैंने कहा सदर साहब, डॉक्टर साहब क्यों? कहा कि कोई नियम ही नहीं है, मानता लेना जरूरी है, वरना 1 लाख का जुर्माना या 25,000 पर दे देना पड़ेगा। हमने कहा सदर साहब आपको मालूम नहीं है कुछ, और जितने वकील साहब थे वो भी तवज्जो से मैंने उनको बताया, 2-1 ने बताया। अच्छा, बाद में वकीलों ने मुझसे मुलाकात की, कहा कि मौलाना साहब हमको तो ये पता नहीं था जो आप बता रहे हैं, आपको तो पता नहीं था, आप बता रहे हैं, मैंने उनको काफिया दी। तो मैं आपसे ये मैं अपनी पढ़ाई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, यानी ये तरबियत होना उलमा इकराम में भी जरूरी है कि आपको किस अंदाज में अपने मदरसे को चलाना है। आप ये विवेक रखिए, कोई आदमी आया अधिकारी, आप कायदे से बैठाइए, उससे बात कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। एक बात नहीं कही। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखो, आप जिस गांव में भी रहते हो, अगल बगल देखो, बहुत सारे लोग नर्सरी स्कूल खोले, 5 तक चलाते हैं, 8 तक चलाते हैं, अब फर्स्ट क्लास चलाते हैं, बिल्डिंग बन गई है, अब पैसा भी कमा रहे हैं, पूरा खर्चा भी निकाल रहे हैं और बचत भी हो रही है। अच्छा, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछा, आप क्यों नहीं कर सकते? अरे आप शाम से 5 तक का मानता नहीं है, कौन कह रहा है कि मानता मुश्किल है?
PSA के यहाँ से मान्यता लेना मदरसा बोर्ड से ज्यादा आसान। PSA के यहाँ से मान्यता लेना मदरसा बोर्ड से ज्यादा आसान है। मदरसा बोर्ड में क्या होता है मालूम है? आप सब जानते हो, यहाँ भी बोर्ड वाले समझते हैं। अल्पसंख्यक अधिकारी जानता है कि यहाँ मानक पूरा नहीं है तो क्या करता है, जब चाहता है कान पकड़ के उठाता बैठाता है अपनी ऑफिस में, और हमारे मौलाना लोग हाँ सरकार, और जो जितना पैसा मांगता है अधिकारी वो देते रहते हैं, क्योंकि भाई चंदा का पैसा है, अपने देश का तो पैसा है नहीं, चंदा दे तो उसको पैसा देने में कोई कबाड़ कर सकते हैं। तो अभी तो वैसे भी मदरसा बोर्ड का मान्यता बंद है सन 16 से। योगी सरकार जब तक है कोई उम्मीद नहीं है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता मिले। देखिए मदरसा बोर्ड में तो सारे मदरसे हैं, यानी मुसलमान ही हजारे उसमें हैं, इसलिए उनका रुख मुसलमान के हिसाब से रहता है। अगर आप PSA के यहाँ से 1 से 5 तक की मान्यता लेते हैं तो आप स्कूल की लाइन में जुड़ जाएंगे। आप अपना ये स्कूल अपने माहौल में चलाइए, अपने माहौल में चलाइए, दीनी माहौल बनाकर 1 से 5 तक आप चलाएंगे। मान्यता भी है, कोई किसी की मजाक नहीं कि आपको आप नोटिस दे सके, और शान से आप जिस तरह दूसरे लोग चलाते हैं आप उनसे 19 नहीं, आप उनसे 20 चलाइए। बेहतरीन इंतजाम कीजिए इंग्लिश पढ़ाने का, बेहतरीन इंतजाम कीजिए हिंदी पढ़ाने का, गणित का, साइंस का, और साथ में अपना दीनी जो सब्जेक्ट है वो भी चला सकते हैं। अगर तरतीब बनाना चाहेंगे तो तरतीब आसानी से बन जाती है, करने वाले कर रहे हैं, न कोई चंदा मांगने जाता है न कुछ करने जाता है। जैसे स्कूल वाले कमा रहे हैं वैसे अल्लाह ताला इसमें भी बरकत देता है, और मुसलमान अपने बच्चों की तालीम के ऐसे इदारों का ज़्यादा मुंतज़िर है। आप समझ लीजिए, मुसलमान चाहे जितना गया गुजरा हो गया हो, लेकिन वो चाहता है मैं तो जैसे था लेकिन मेरे बच्चे कम से कम दीन से वाबस्ता रहे, ईमान उनके अंदर बाकी रहे, और दुनिया की तालीम भी आ जाए तो बहुत बेहतर है। यानी हर मुसलमान तो मौलवी नहीं बनाएगा अपने बच्चे को, हाफिज तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये जरूर चाहता है ईमान रहे और दुनियावी तालीम हो, ताकि मेरा बच्चा आगे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आप 5 तक यानी 5 की आखिरी हद है, 5 तक स्कूल कायम कीजिए और मान्यता लीजिए PSA के यहाँ से। PSA के यहाँ से देखिए इनका मानक बहुत कम है, मदरसा बोर्ड का मानक ज़्यादा है। मदरसा बोर्ड का मानक है 20 बाई 30 का कमरा, और इनका मानक है यानी 300 वर्ग फीट है, इनका 180 वर्ग फीट है। 180 वर्ग यानी आधे के करीब है। आप समझे नहीं? तो हमारे मदरसे में आमतौर से छोटे छोटे कमरे होते हैं, आप तो ले सकते हैं मान्यता, लेकिन मान्यता की पूरी जानकारी आप खुद लीजिए। आप PSA के यहाँ से जाएंगे, PSA के यहाँ आप जाइए, वहाँ आपको अगर कहेंगे कि हमको 1 से 5 तक की मान्यता लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, यानी उसका क्या मानक शराइत क्या है, वो आपको कागज देगा। उस कागज में सारी चीज़ें लिखी हुई है। किसी दूसरे के कहने में आप मत आइए, वो कह रहा था कि 500 वर्ग फीट 25 बाई 25 का कमरा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ, उसमें 5 कमरे आपके होने चाहिए, यानी PSA के यहाँ जो आप मान्यता लेंगे 180 वर्ग फीट का। अब आप जोड़ लीजिए, या 200 वर्ग फीट मान लीजिए, यानी 200 वर्ग फीट 300 कम, एक छोटा कमरा हुआ, और 3 कमरे और छोटे छोटे, एक प्रिंसिपल का, सदर मुदर्रिस का कमरा, एक ऑफिस का और एक लाइब्रेरी का, ये 3 छोटे छोटे। तो ये 3 छोटे छोटे 5 वो हैं, ये गोया 8 हो गए। हमारे मदरसे में आमतौर से एक बड़ा अगर हाल है तो उसको हम पार्टीशन करके 2 कर सकते हैं, और बहुत बड़ा हाल है तो पार्टीशन करके 3 कर सकते हैं। मैं इस बात का कायल हूँ कि मानक पूरा होना चाहिए। झोला छाप मदरसा मत कोई कि मानक नहीं है, थोड़ा बहुत कमी है मान लीजिए तो चलनसार है, और ये नहीं है कि कमरा है ही नहीं है, 2 ही 3 कमरा है। और आप ये कहते हैं बड़े फर्स्ट कहते हैं अरे ये सब चल जाता है, वो पैसा लेकर मान्यता दे देते हैं। अरे पैसा लेकर मान्यता दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा मालूम है आपको? आपके नाक में नकेल डाल देते हैं, और जैसे चाहते हैं घसीटना उसे आप घसीटते हैं। आप घसीटा पूरी का एक वाक़या बता रहा हूँ, बता दो आप अगर कहिए तो। ये जब शुरू में चला था वजीफे का मामला, मालूम है आपको? वजीफा कहते थे,
प्राइमरी के बच्चों को 300, उसके बाद जूनियर वालों को इतना इतना। तो अधिकारी क्या कहता था जब शुरू में? अधिकारी ये कहता था भाई साहब अगर मानता है मदरसा बोर्ड से आपको आपके बच्चों को वजीफा मिलेगा, टीचर मिलेगा। कहा कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। कहा कि ऐसा करिए आपको 500 का फार्म है। आपने बताया सही, उसने मशवरा दिया कि 500 का फार्म भर दीजिए आप। ऐसा कैसे? कहा कैसे? संसद तो मैं करूँगा ना, बात किसको करना है? आप कार्य क्या करते हो? 100 बच्चों को पूरा पूरा दीजिए, 400 बचेगा, आधा आप दीजिए, आधा मैं। बात आप समझ में आ गई? आपके नहीं मेरे समझ बात आ गई। मैंने 100 की जगह 500 भर दिया। 500 जब भर दिया और मैं खुशी खुशी ले आया, 100 बच्चों को बांटा, 200 जेब में रखा और 200 अधिकारी महोदय ने दे दिया। अब जाहिर की बात है हर मदरसे के अगल बगल कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मदरसे के मुखातिबीन होते हैं कि नहीं? गंगों में जो इतना बड़ा मदरसा है उसके बाहर एक आदमी साइकिल पंचर बनाता है। वो साइकिल पंचर बनाने वाला उस गंगो मदरसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हर मदरसे के मुखातिबीन होते हैं। अब पता चल गया कि मौलवी साहब के यहाँ 100 बच्चे हैं, 500 को वजीफा आता है। अब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दे दिया। जब एप्लीकेशन दे दिया, अब जाहिर की बात है एप्लीकेशन जब पड़ेगी तो रेगा शुरू हो जाएगी। आप कितना भी चाहें उस एप्लीकेशन को दबाना तो उसे दबा नहीं पाएंगे। और एप्लीकेशन पाते ही अधिकारियों के मुंह में पानी आ जाता है, खासतौर से मदरसों के खिलाफ। अगर कोई एप्लीकेशन आ गई, अब एप्लीकेशन गई तो अब मौलवी साहब कहेंगे सर आपने ही कहा था, आपने ही कहा। तो हमने कहा था लेकिन मैंने नहीं कहा था। अब वो छड़ी बोल दिया मैंने नहीं कहा था। अब नकेल तो डाल दिया है आपने। अब आपने पूरा 500 रजिस्टर बनाया है, सारा काम तो आपको करना होगा। नतीजे क्या होगा? आपको भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि झोला छाप मदरसा नहीं, थोड़ा बहुत अगर कमी है, जैसे मान लीजिए वर्ग फीट में 200 वर्ग फीट की जगह 190 बनता है, तो ये हर अधिकारी भी नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन अगर आप मदरसा यानी स्कूल खोलें, बाकायदा अच्छा खोलें। देखिए स्कूल के और स्कूल के बनाव श्रृंगार से भी गार्जियन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। शीशे की तरह चमकता है, बेहतरीन किस्म की इमारत रहे और आप अपने मदरसे के बच्चों का ड्रेस वगैरह भी बहुत अच्छा रखें। हम अपनी इस्लामी तहजीब को बरकरार करते हुए बहुत अच्छा ड्रेस रख सकते हैं, करने वाले कर रहे हैं, करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। उनसे ज़्यादा कामयाबी आपको आप कर तो देते कि हिम्मत करो। खाली मदरसा खाली खोलने पर हिम्मत, स्कूल खोले स्कूल, और स्कूल खोलना ही ये सारी बुराइयों का हल है। आप हल बताते रहिए, इब्तिदात कर रहा है, इब्तिदात कर रहा है। अरे इब्तिदात क्यों कर रहा है? बच्चियों के कॉलेज का इंतजाम आपने कहाँ किया? आप बताइए। हर आदमी को मदरसे में नहीं भेज सकता है कि चलो, अब हर आदमी का पैसा भी नहीं है। गाँव के करीब में कॉलेज है, कॉलेज में हर आदमी अब चाहता है कि मेरी बच्ची जो है पढ़ी लिखी हो जाए। क्योंकि शादी ब्याह में पहले तो जहालत की बुनियाद पर शादी नहीं होती थी, शादी हो जाती थी। अब तो हर आदमी को पढ़ी लिखी पहुँच जाए वो कॉलेज भेजता है। और उस कॉलेज का माहौल आप जान रहे कैसा है, इब्तिदात की शिकार हो गई। अरे तो उसका हल ये नहीं है कि खाली आप कहिए, तो उसका हल ये है कि सरजोड़ पर बैठिए। आप अपने जिले में कम से कम एक ऐसा स्कूल कॉलेज बनाइए मुस्लिम बच्चियों की तालीम के लिए, जहाँ मुस्लिम बच्चियाँ जाकर आपके माहौल में रहकर कम से कम जूनियर तक या हाई स्कूल तक, इंटर तक की तालीम हासिल कर सके। आप करके देखिए, आपको इतना पैसा मिलेगा कि रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए कि उम्मत चाहती है कि मैं अपनी बेटियों को इब्तिदा से बचाऊं, उनके ईमान की हिफाजत करूं। लेकिन उम्मत ये भी चाहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी बेटी आगे की तरफ जाए। आप इसका इंतजाम करते नहीं। तो मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँ। तो बहरहाल ये चूँकि ज़रूरी बातें हैं, इसलिए ज़रूरी बातों को समझकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, इतने लोग धीरे धीरे इकट्ठा हैं,
कायम करना। अब वो स्कूल हम मानता नहीं है, बीएसए के अंदर मानता नहीं, मदरसा बोर्ड छोड़ दीजिए, मदरसा बोर्ड तो आप या अकेले हैं, जब जाए जब काम आप निकाले हो, समझे। और इसमें जब कोई आफत आती है तो आप पीछे रहेंगे, सारी दुनिया आपके आगे रहेगी। कोई आफत आएगी ये बीएसए वाले बोर्ड में, यानी इलाहाबाद बोर्ड का जो है, तो इसमें तो सारे के सारे वो लोग हैं, जब कोई मुसीबत आएगी स्कूलों पर तो वो सब आगे रहेंगे, आपको झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, आपका तो मामला वैसे क्या हो जाएगा। और मदरसा बोर्ड में सारा उठक बैठक आप ऊपर आएगा। अब मालूम है ये हुई सरकार, यानी ये जो चल रहा है कि मदरसा बंद कर दिया जाए, मदरसा बंद कर दिया जाए, चल रहा है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में है ना। तो जितना ये मदरसा चलाने वालों को परेशानी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अल्पसंख्यक अधिकारियों को परेशानी है। मालूम है क्यों है? उनकी आमदनी डूबते थे, ये दुधारू गाय है, ये दुधारू भैंस है, वो डूबते रहते थे। जब कभी पैसा आया, हाँ भाई इतना परसेंट दो, इतना परसेंट दो, इतना परसेंट दो। अब किसी की वक्त पूरा हो गया, अब उसकी जगह को किसी ने नियुक्त करना है, मान लो 17 खत्म हो गया, अब उसकी जगह को किसी की नियुक्ति करिए, आप रात एक नियुक्ति के लिए आप सोचिए 25-25 लाख रुपये हमारा ये मोदी आदमी देता है, यानी नियुक्ति के लिए 25-25 लाख कोई हल है, और उसमें सबका हिस्सा रहता है, यानी बीएस का अधिकारी देगा ऊपर तक सबका हिस्सा रहता है। तो भैया मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ो, आप बीएसए के यहाँ से मानता लो 1 से 5 तक, 1 से 5 तक भी मानता लेना आसान है, और 1 से अगर 8 तक अगर आप मानता लेंगे तो उसमें भी थोड़े से कमरे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसी खर्च में हो सकते हैं। हर ज़िले में अलग अलग खर्च का अपना रिव्यू बना हुआ है, यानी रिश्वत तो देखो भाई हमारे लिए तो रिश्वत ये रहमत है, अगर हमें कोई जायज़ काम करना है और जायज़ काम करने में अड़चन आ रही है, अगर रिश्वत नहीं होता है तो ये हमारे लिए रहमत समझ, यानी ये काम रिश्वत देकर हो जाएगा तो है वो जायज़ काम। तो थोड़ा मानक के एतबार से, यानी कमरों की तादाद के एतबार से फर्क है, नहीं तो कम से कम आप 5 तक की मानता लीजिए और आप खर्च मान के देखिए उसमें 35,000 रुपये की एफडी लगती है, एफडी 35,000 की लगती है जो आपको बाद में रिलीज हो जाएगी, और 10,000 सबको लगता है वहाँ का शुल्क हो गया है, 45,000 हो गया है। और एक आपका लेना पड़ता है फायर का एनओसी, अग्नि का एनओसी लेना पड़ता है, और एक लेना पड़ता है भूकंप का एनओसी, ये लेना पड़ता है। इन दोनों एनओसी के लेने में कुछ पैसा कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। बहरहाल आप कोशिश करेंगे तो आपको मान्यता मिल जाएगी, और सुकून इत्मीनान के साथ आप अपना मकसद चलाइए, अपनी दीनी तालीम के साथ मकसद आप चलाइए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। कोशिश कीजिए और आप अपने इलाके में खोलिए और बेहतरीन बच्चों का ड्रेस रखिए, बेहतरीन बैठने की जगह बनाइए, इमारत की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कहीं चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपने इलाकों में देख रहे हैं सारी ठाट के साथ कार कर सकते हैं, बढ़िया बंगला बनाए हुए हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो अल्लाह रसूल अल्लाह का खौफ करते हुए काम करेंगे ना, थोड़ा हम अपने कौम की रियायत करते हुए काम करेंगे, लेकिन हम शान से इंशाअल्लाह काम करेंगे। शान से काम करना ये हमको भी चाहिए, इज्जत के साथ काम करना। बस ये कुछ गुजारिशात जो मैंने आपके सामने की है, उम्मीद है आप हज़रात इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो इरादा कर लीजिए, हम अगर हमारा 5 तक का है और मानता नहीं है तो मानता की फिक्र कीजिए, इसका कोई हल नहीं है। आपको मैं बता दूँ, कोई चाहे लाख कुछ कहे, आप 5 तक चला रहे हो, घबराओ नहीं, मेरे पास ये लिख कर भेजो, वो लिख कर भेजो, ये झूठ और फ्रॉड है। चाहे जितने बड़े आलिम कह रहे हो, मैं तजर्बा बता रहा हूँ, 1 से 5 तक अगर आप चला रहे हैं तो आपको मानता लेना जरूरी है, लाजमी है, कोई सफर नहीं है इसके अलावा। चाहे तो जितना कह रहा हो कि आप मेरे पास लिख कर भेज दो, मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इल्ला एक ही गवर्नमेंट खामोश हो जाए, इल्ला एक ही गवर्नमेंट ही खामोश हो जाए। मैं कहता हूँ कि छोड़ो, मारो गोली, गवर्नमेंट खामोश हो या ना हो, आप तो चलाओ इसको। गुजरात में जाकर देखो, गुजरात महाराष्ट्र में हमारे उलमाए किराम शानदार हाई स्कूल का
कर चला रहे हैं, बच्चा हाफिज भी बनकर निकल रहा है, यानी 7 साल हाई स्कूल भी कर रहा है, हाफिज भी बनकर निकल रहा है, इंटर भी कर रहा है और आगे जाकर नीट के एग्जाम में भी बैठ रहा है। बहुत सारे आप शाहीन ग्रुप का नाम देखे होंगे ना, देखो ये चंद दिन का ग्रुप है। शाहीन ग्रुप बहुत जमाने का नहीं है, चंद ही साल का है ना, पूरा मुसलमान की तरफ मुतवज्जे हो गया। वह काम करने की नौबत देखो, तो जब काम करने की नौबत आपकी भी ऐसी हो जाएगी तो पूरी कौम आप पर मुतवज्जे हो जाएगी। इनसे सबक सीखो और दीनी तालीम के मकासद गाँव कायम कीजिए ज़रूर, ये उनकी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बुनियादी फिक्र कीजिए मुझे स्कूल कायम करना है। जो कायम कर सके हाई स्कूल भी करे, जूनियर भी करे। अल्लाह ताला हम सब फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर किसी को जानकारी कुछ चाहिए, देखिए मैं इस बात का कायल नहीं हुई है, हाँ कहीं देखो ये तो लहर को तो बहुत शानदार था, इसकी तारीख लहर अगर ये चाहें तो शानदार CBSE बोर्ड का 5 तक स्कूल चलाएं, फिर हाई स्कूल तक चलाएं, फिर क्या कहते हैं ऊपर की डिग्री तक MA वगैरह ये चलाएं, ये तबका इतना माता है, बहुत शानदार ये चला सकते हैं, कोशिश करना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसका बेनिफिट इतना अच्छा मिलेगा कौम को कि जिसकी कोई नज़ीर पेश ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ इस लहर को, हमारे मौलाना बैठे हैं माशाअल्लाह इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे। जिस नहर पर जो काम शुरू किया है, गालिबन मैंने जो रोशनी डाली है उसी नहर पे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे और नए नए लोगों को भी हिम्मत अता फरमाए। आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी 100% अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। किसी को किसी चीज़ की जानकारी अगर लेना हो मदरसों के ताल्लुक से और स्कूल के ताल्लुक से, तो मुझसे रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह मैं पूरी मदद करूँगा, मैं पूरी मदद करूँगा जो हो सके। और फ्री मदद है, कोई ऐसा नहीं है, मैं पूरी मदद करूँगा। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे बहुत से लोग सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। स्कूल जब खोलना होता है तो पहले कहते हैं कि कैसे खोलें, तो सोसाइटी बनाएं, है ना, सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपकी सोसाइटी चाहे लखनऊ से रजिस्टर्ड होती हो, हर इलाके की अलग अलग होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी की क्या परेशानी है, आपको हर 5 साल पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। कोई सोसाइटी का मेंबर आपका मुखालिफ हो गया, दरखास्त दे दी, चलो उसकी हेयरिंग हो रही है, चलते रहो, दौड़ते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, और वो भी पैसा हज़ारों नहीं है तो लाखों की बात होती है, हज़ारों नहीं लाखों की बात होती है। तो जब तक सोसाइटी का ये मसला चल रहा था, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप ट्रस्ट बनाएं, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आप जिस तहसील से मुताल्लिक़ होंगे वहीं पर हो जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट बनाएं और आप उन लोगों को उस ट्रस्ट में रखें जो 100% आपकी मदद करने वाले हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर के लोगों को रखें, भाई आप बाहर के रखना चाहते हो तो रखें, लेकिन अगर आपको काम करने की 100% नियत है तो आप अपने बेटों को रखें, अपने घर की औरतों को रखें, अपने भाइयों को रखें और ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपको नेकी से काम करना है, यानी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर वालों में छोड़िए, मैं एक बात कर रहा हूँ, इसलिए गुंजाइश है तो अपने उन लोगों को इस ट्रस्ट रखें जो 100% आपकी हिमायत करते हुए, मुखालफत न करते हों, और आप भी काम की नियत है अल्लाह वास्ते कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करें। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन यानी जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, ऐसे ट्रस्ट की रजिस्ट्री होती है, वकील लोग बनाते हैं, वकील लोग ट्रस्ट डीड कहलाता है, जैसे सोसाइटी में बाइनास कहलाता है, ऐसे ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड होती है, जिसमें अमराज मकासद सर्दी किए जाते हैं, जैसे सोसाइटी में किए जाते हैं। यहाँ आप जाएंगे और मिनिमम खर्चा उसका सिर्फ 5-6 हज़ार में हो जाएगा, 5-6 हज़ार। जो लोग कराते रहते हैं उनको मालूम है, वरना आपको अगर नहीं मालूम है, आप किसी वकील से अगर पूछेंगे हमको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराना है रजिस्टर, तो कहेंगे 50 हज़ार लगेगा, 25 हज़ार लगेगा, 50 हज़ार लगेगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो इस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन में, तहसील में रजिस्ट्री कराने में
زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ہزار تک خرچہ آئے گا. یعنی ایک معمولی رقم 11,000 کے کو سامنے رکھ کر بھائی اگر بہت بڑی عمارت کرائیں گے تو وہ فیس لگتی ہے. جیسے زمین کی اتنا بڑی فیس لگتی ہے بھائی جتنی زمین ہوگی اسی حساب سے اسٹیمپ پیپر لگتا ہے. ایسے ہی اس میں بھی ہے. جتنا آپ رقم دکھائیں گے کہ میرے ٹرسٹ کی اتنی رقم ہے یا اتنی زمین ہے تو اسی کی مالیت کے اعتبار سے وہ فیس لگتی ہے. تو آپ 11,000 مالیت دکھائیں کہ ہمارے ٹرسٹ کے پاس 11,000 روپیہ ہے تو اس 11,000 پہ جو اسٹامپ پیپر لگے گا 3-4 ہزار کا یا 2,000 کا وہ لگ جائے گا. باقی وکیل کچھ دے دے گا, کچھ ٹرسٹ رجسٹریشن کرنے والے کو دے دیں گے. کل ملا کے 4-5 ہزار میں آپ کا یہ ٹرسٹ ڈیڈ تیار ہو جائے گی. اور اس کی وہی ویلیو ہے جو سوسائٹی کی ویلیو. آپ کوئی بھی مدرسہ کھولے, اسکول کھولے, اس ٹرسٹ کو لگائیں. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کبھی اس میں ریٹول نہیں, کبھی اس میں ریٹول نہیں ہے. کوئی آدمی اس میں انتقال کر جائے تو جتنے لوگ ہیں اور اسی میں مشورہ کر کے جس کو چاہیں نیا آپ نयुक्ति کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ چلو لام باندھ دیا ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, اب ایسا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کیسے سوسائٹی میں ہوتا ہے آپ لوگ کو باقی ہیں, رینٹ والے کو باقی ہیں. بہرحال یہ ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ آسان ہے اور یہی اب سارے لوگ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں اگر کوئی نئی کوئی آپ مدرسہ کھولے یا سوسائٹی ذہن میں آئے یا ٹرسٹ تو آپ ٹرسٹ کو اپنائیے. انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے زیادہ سہولت ہوگی اور کوئی اس میں بہت پیش کام نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام کرنے کی ہمت دے, طاقت